National Book Trust India is an apex body of the Government of India which was established in 1957. A vision of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, it was conceived primarily with the objective of promoting books and to create and nurture a culture of reading in the country. The National Book Week is an annual event organized by the National Book Trust India across the country, which coincides with Children's Day as it is held from the 14th to the 20th of November every year. During the week-long celebrations, a number of book-related events like seminars, poetry, storytelling sessions, and essay competitions aimed at promoting books and creating awareness about the joy of reading among people are organized. We welcome our Honorable Chief Guest, Shri Kapil Sibalji, Minister of Communications and Information Technology, with a welcome song by the students of Alcon International School. We request Dr. Aslam Parvez, Principal Zakir Hussain College, to welcome the Minister. We now request M.A. Sikandar, Director, National Book Trust India, to present the Minister a bouquet of books. Honorable Kapil Sibalji, Minister of Communication and Information Technology, my colleague Dr. Khaja Ikramuddin, the Director, National Council for Promotion of Urdu Language, and our Dr. M. Aslam Parvez, Principal, Zakir Hussain, Delhi College, and honorable guests, and teachers, principals, and my own dear colleagues, and press people, and especially school children. Because yesterday there was a festivity everywhere, we celebrated Diwali. Despite their preoccupation, so many people are gathered here to give inspiration to NBT to do more and more such book even in the country.
And we have chosen this college, Dr. Zakir Hussain Delhi College, because of two reasons. One, this is strategically located, and we never will be able to do any events in the walled city, because we want to connect with childrens, especially residing in this area. Almost 2/3 of the total school children are studying here in this area. And so many NGOs are working closely with street children and night shelter and other activities here. So we thought of doing some activity here. And this in our first leg, we are starting with this book event here. In the future, and Aslam Saab agreed to tie up with us and Urdu Promotion Council to do more and more book exhibitions in this part of world, because the National Book Trust India is committed to serve the society with good books, because it is the National Book Trust was established in 1957. It was the brainchild of Pandit Jawaharlal Nehru, and today, being the Children's Day, we symbolically start this book week. The last 25 years we have been doing this book event, and this time we have stepped up. We used to do 5 or 10 program in the country. This time, sir, you may glad to know 250 programs we are doing in 15 states, including remote locality like Andaman and Nicobar Islands and Kashmir and other part of the world. So we are now attending the unattended pockets, and we are reaching our people. We activated all this language advisory committee meetings and all. We are totally occupied, and we are grateful that Minister has come to grace this occasion and launch this program here, because symbolically we launch any events in Delhi and it goes around the world. And apart from that, we are taking Indian books abroad also. We are making a mark in bringing India as a focus. And Kapil Sibal Saab was very instrumental, because we have been doing this New Delhi World Book Fair for the last 40 years, and there was a persistent demand from the public and book lovers and the publishing industry to do it an annual event. And sir did that, and we are very much grateful, sir. And thank you very much. Namaskar. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि जिस कॉलेज में इस किताब के हफ़्ते का एहतमाम किया जा रहा है और जिनके हाथों से किया जा रहा है, ये अपने आप में ऐसा संगम है कि आप ज़रा इस अंदाज़ से देखें कि किताब है क्या। किताब बुनियादी तौर पर इल्म का ख़जाना है, और इस किताब के बारे में न सिर्फ हम और आप, बल्कि दुनिया की तमाम मज़ाहिब किसी न किसी तरह से इसके हवाले से बात करती ही करती है। अगर आप कुरान करीम की तरफ देखें तो आप बहुत ही वाज़े अंदाज़ में लिखा हुआ है कि अल्लमल इंसान बिल कलम, यानी इंसानों को जो इल्म अता किया गया उसका तवस्सुत कलम था। कलम का मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि उसको कागज़ पर उतारना ही पड़ेगा। अच्छा, उसी तरह से इल्म का ख़जाना जिस तरह से किताबों में है, वो सदियाँ गुज़र जाती हैं, तहज़ीबें मिट जाती हैं, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो किताबें, वो तहरीर हमेशा ज़िंदा रहती है। पूरे दिल्ली वालों की जानिब से और पूरे किताब लवर की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। We now request the Honorable Minister to inaugurate the National Book Week celebrations by releasing specially designed posters for the National Book Week. Thousands of posters are being distributed across the length and the breadth of the nation in various schools, colleges and institutions to remind students of a week that is dedicated to books. We would request the Honorable Minister to release books for children on this occasion. The books to be released by the Minister include A Wet Summer Day, Chotu's Misadventures, Sammy the Snail, Happy 100th Birthday Delhi, गुलर का जंगल और टोपी वाले बंदर, एक थी बकरी, चिड़ियाघर की सैर कराएं, प्यारे भाई राम सहाय, and the Urdu translation of Swatantrata, Hindi Kahaniyan. This is a collection of post-independence Hindi short stories edited by Shri Kamleshwar, an eminent short story writer. The book has been rendered into Urdu by Shri S.A. Rahman.
We now request our Honorable Minister to give his inaugural address and speak few words of encouragement for the students and share his joy of reading with us. जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के रहनुमा असलम परवेज साहब, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर एम ए सिकंदर साहब, और यहाँ मौजूद मेरे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बेअंदाज खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया इस अवसर पर। सालाना आप 14 नवंबर नेहरू चाचा के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत करते हैं और हफ्ता पर यह सिलसिला चलता रहता है। तो मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह हसीन मौका हमारे सामने लाया। अभी ख्वाजा साहब ने इल्म की बात की थी और ख़जाने की बात की थी। अक्सर जब ख़जाने की बात होती है तो बैंक बैलेंस के बारे में आदमी सोचता है कि मेरे ख़जाने में क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कैपिटलिस्ट मार्केट प्लेस में हमेशा आदमी पैसे के बारे में सोचता है, लेकिन असली ख़जाना अगर किसी के पास है तो वो ज्ञान का ख़जाना होता है। उसका जो बैंक बैलेंस है वो जगह कभी कमती नहीं होता। बैंक में आप पैसा रखो तो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बैंक अकाउंट बंद भी करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी बैंक बैलेंस कमती होता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ये कोई इंसान समझ ले, और हमारे बच्चे खास तौर पे इस छोटी सी बात को समझ लें, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जब बड़े होंगे और इल्म पे ध्यान रखेंगे, तालीम पे ध्यान रखेंगे और अपना ख़जाना ज्ञान के द्वारा बढ़ाते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपना भी वो ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे, अपने इलाके का भी ख्याल रखेंगे और अपने देश का भी ख्याल रखेंगे। I'm given to understand that the National Book Trust has published about 17,000 titles. 17,000 टाइटल आप लोगों ने पब्लिकेशन इनकी की है। ये बहुत बड़ी बात है। And this was the vision of Pandit Jawaharlal Nehru, 1957, when this was set up. And I believe that it is through books that we empower our children, and that through books children empower themselves. मैं जब छोटा होता था, खुद छोटा होता था, तो हमेशा वक्त बिताता था कि किस तरीके से कोई किताब हाथ में आ जाए उसको पढ़ना, और ऐसे ही हमारे बच्चे आज भी करते हैं। नई चीज़ें हों, नई कहानियाँ हों, नई एक रास्ता मिले, इल्म का रास्ता मिले, नॉलेज का रास्ता मिले, और बच्चा जब बड़ा होता है तो उत्सुक होता है कि किसी तरीके से ज्ञान ज़्यादा उसको मिले, और किताब ही एक ज़रिया है जिसके द्वारा ये हो सकता है। लेकिन 21वीं सदी में ये भी सब बदल जाएगा। आने वाले दिनों में 10, 15, 20 साल के बाद ऐसा लगेगा किताब की तो अहमियत रहेगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन जो बच्चे की रीच है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट द्वारा एक बटन के क्लिक होने से आप दुनिया में कोई भी किताब को एक्सेस कर सकते हो। उसकी पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पैसा दिया और उस किताब को एक्सेस करके जो आपका मन चाहे किताब हो वो आप पढ़ो। तो वो जो ख़जाना है इल्म का 21वीं सदी में, वो बहुत बड़ा ख़जाना बन जाएगा, और बच्चों को ये हक होगा कि किस किस्म का ज्ञान वो अपनाना चाहते हैं और किस किस्म की किताब वो पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक जो परिवर्तन हो रहा है, एक रेवोल्यूशन सा हो रहा है किताबों की दुनिया में, क्योंकि प्रिंटिंग बुक तो खैर रहेगी ही रहेगी, आपकी लाइब्रेरी में बुक रहेगी ही रहेगी,
नेशनल बुक ट्रस्ट में वो बुक रही भी रहेगी, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगी। और आने वाले दिनों में मेरी तो सोच ये है कि जब हम आकाश को लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप आकाश में भी हम डाल दें, ताकि बच्चे खुद ब खुद क्लिक बटन करके अपनी किताब पढ़ें आकाश के द्वारा। ये हमारा सपना है और मैं समझता हूँ इसको हम साकार करेंगे। National Book Trust has done many things. First of all, it has translated a lot of books from local languages. नेहरू जी का विजन ये था कि भाई जैसे ही ट्रांसलेशन हो कि बाकी जगह लोग रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी एक्सेस मिले कि भाई बंगाल में क्या कोई पढ़ रहा है, बंगाल में कैसी किताबें लिखी जा रही हैं, वो भी ज्ञान आपके दायरे में होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम नेशनल बुक ट्रस्ट कर रहा है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और नेशनल बुक ट्रस्ट इज़ ऑल्सो गॉन टू वेरी मैनी कंट्रीज आउटसाइड of India to hold book fairs. But I believe that the time has come for the National Book Trust to launch itself in a much bigger way. And I would request the National Book Trust, along with the National Council for Promotion of Urdu Language, to tie up with the Ministry of Information Technology. Because in a three-way collaboration, we can promote not just the Urdu language, but a lot of books in the National Book Trust as well. और ख़ास तौर पे जो बच्चों की किताबें हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है उसके आधार पे जो किताबें बच्चों की हैं, जिस तादाद में पब्लिश होनी चाहिए उस तादाद में पब्लिश होती नहीं है। अब तो ऐसी बच्चों की जो कहानियाँ हैं वो आपके आईपैड पे भी आ सकती है, आपके कंप्यूटर में भी जा सकती हैं। तो इलस्ट्रेटिव कहानियाँ जो आज आप प्रिंटेड फॉर्म में हमें दिखा रहे हो, जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, वो ग्राफिक और डिजिटल फॉर्म में अगर आप उनको कंप्यूटर में डाल दें और वो एक्सेस बच्चों को मिल जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका कितना लुत्फ आएगा बच्चों को जब वो क्लिक ऑफ द बटन से अपनी इलस्ट्रेटिव बुक्स अपने कंप्यूटर में देख पाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मुझे प्रवेश साहब यहाँ बुलाया, लेकिन मेरा जो अपनी सोच है एजुकेशन के बारे में, अगर आप प्रवेश साहब, असलम साहब वो किताब मुझे देंगे तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। It is titled The New Voyage. This is what it reads. The limits of my mind set free. Help me to think creatively. ये बच्चों के लिए खास तौर पे। The limits of my mind set free. Help me to think creatively. Let boundaries of learning dissolve. Solutions will slowly evolve. Don't chastise me for failures which my efforts then will help enrich. So don't chastise me for failures which my efforts will help enrich, will falter as I seek to learn. This process will help me discern my voyage of discovery, where I will find the real me. Help me perform my very best, align it to our national quest. Thank you very much. We would request the minister to give away prizes to students who won the competition. Over more than 50 schools have registered with us for books to be distributed by us. SKV Malkaganj, Sarvodaya Kanya Vidyalaya, GBSSS Shakti Nagar, GBSS again from Magazine Road, SKV Shakti Nagar, RPVV Civil Lines Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, GBSSS Roshnara Road,
GGSSS रूपनगर, हकीम अजमल खान मेमोरियल स्कूल दरियागंज, SKV नंबर 2 जामा मस्जिद, मदरसा अजम अबू हरीफ ओखला, जामिया इस्लामिया अरबिया सराय रोहाला, मदरसा जामा बुताल रासलहा सुल्तानपुरी, मदरसा मक खाजत तबलुम इस्लाम जामिया नगर, मदरसा हुसैनी बाटला हाउस जामिया नगर, मदरसा मकादुल इस्लामी निज़ामुद्दीन, SKV मैगजीन रोड नंबर 2, GSKV बुलबुली खाना असफ अली रोड, आई एम रियली हैप्पी टू वेलकम यू ऑल इन दिस इंस्टीट्यूशन। मुझे दिली खुशी है आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे हर दिल अज़ीज़ मिनिस्टर सिब्बल साहब के साथ मिलने का एक और मौका मिला। जो आपने किताबों के, उर्दू ज़बान के और तालीम के सिलसिले में फ़रमाया और जिस तालमेल की बात कही, तो मैं दो हम्बल सजेशंस एंड सबमिशंस, दो बातें अपनी रखना चाहूँगा कि इन इंस्टीट्यूशन से मेरा एक उर्दू के तालिब इल्म के तौर पे मुझे एक चीज़ का ये एहसास रहा है कि ये प्रॉब्लम NCPL को भी थी और यकीनन उस सिलसिले में अब भी ख्वाजा साहब मुत्तफ़िक़ होंगे कि एक अरसे से CTEC में एक प्रोसेस चल रहा है एक स्क्रिप्ट का उर्दू के, कि उसको नेट फ्रेंडली बनाने का, कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने का। तो इसमें बाज़ाब्ता तरक्की या कामयाबी हमें अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि सिब्बल साहब के आने के बाद नेचुरली आई एम रियली होपफुल एंड आई एम श्योर, उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि अब हमें कंप्यूटर फ्रेंडली उर्दू स्क्रिप्ट ना सिर्फ ये डेवलप हो जाएगा, बल्कि सिकंदर साहब अब ये सोचेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक में ई पहले लगाएं या बाद में लगाएं, ये ई बुक ट्रस्ट बनेगा। और इनकी ई बुक्स जो हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, किंडल की तरह के सॉफ्टवेयर आपके आकाश में भी होंगे, क्योंकि लोग ज़मीन पे तारे लेके आते हैं, सिब्बल साहब आकाश को ही नीचे ले आए। और ये आकाश जो है, ये इन बच्चों के जिन्होंने अभी किताबें थामी हैं इनके पास होगा। तो एक तो मेरा हम्बल सबमिशन ये था। दूसरा ये कि बहरहाल किताब की अहमियत अपनी जगह है और उसमें जैसा ख्वाजा साहब ने कहा कि NBT और NCPL मिल के अगर उर्दू मीडियम स्कूलों में किताबों की एग्ज़िबिशंस कर सकें, नुमाइश लगा सकें। बहुत शुक्रिया सर आपके यहाँ आने का। हमें ऐसे अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है आप जहाँ पे भी रहेंगे इसी तरह हम लोगों की, एक आम आदमी के, आम इंसान की खिदमत करते रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, आज त्यौहार के दिन यहाँ आए, बच्चों के लिए ख़ास तौर से कि उन्होंने यहाँ आके शिरकत की इस प्रोग्राम में और इस कॉलेज की इज़्ज़त अफजाई करी। थैंक यू वेरी मच।